How are you? I hope you are doing well during this time. Students, as you know that you are staying at your home and trying to be a part of the barrier in COVID-19 situation. You are staying at your home, taking the online classes, just trying to connect with your subject teacher. Each and everything is doing. But students, try to focus on your study because this is one of the precious time for you. This precious times never comes again. Okay, try to utilize more efficiently. Okay, so with this, let me introduce myself. My name is Virendra. I am your computer teacher, and I am here to give you the most important details about Windows 7. This video belongs to class 6, okay, but other classes can take the also benefits of watching by watching my videos, okay. And the chapter is more on Windows 7, and right now the topic is exercise and its solution. Okay, we'll try to complete each and everything in this video, and we'll have the detailed description about each and everything. ओके मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक एक चीज आपको कोशिश करूंगा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का, उसका आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है. सो what are you waiting for? Please come to my laptop so that you can have the details about the same. And once you have any kind of query, any kind of question, you can just contact me. I will try to resolve each and every query. Okay, so please come to my laptop to have more. Students, now I am going to start the class. As you know that chapter number 2 is already running, and today is the day to complete the exercise. Okay, I will try to give the solutions of questions which are given in exercise. Okay, so with this wish I am just going to move forward, okay, and to have the next slide so that you can have the kinds of questions. Okay students, so right now this is question number A, that is fill in the blanks. Okay, and in this you have to just fill the blank which is already there, right? So if you talk about the question 1, the question 1 says that Microsoft Windows Media Player is used to run and dash digital media files on the computer. Okay, so to student, do one thing, just try to give the answer, whatever the answer you are thinking about, just try to give the answer on the YouTube comment as well as WhatsApp, right? Okay, so let's have the answer. The answer is organize, right? Many students are trying to give the correct answer, but I will give the like, okay, if you give the correct answer, and don't bother about the wrong answers. Okay, we'll make the corrections. Okay, so just be active and try to give the answer. Okay, let's come to the question number 2. Dash refers to copying song from the CD, okay, a computer. Okay, it means that you are trying to copy the song from CD to computer, right? So what is called now? Okay, that's a very simple question for you. Okay, that's a very simple. So let's have the answer. The answer is ripping. Okay, whatever the contents are there in your computer, okay, if you copy the contents from CD to a computer, that is called ripping. Okay, now let's come to the question number 3. Dash is the latest version of Windows. You have to tell what is the latest version of Windows operating system. Okay students, so now let's have the answer. Answer is Windows 10. Okay students, so try to understand the question and then we'll give the answer. Okay, so right now we are coming to the question number 4. The question number 4 is Windows mobile software empowers advanced devices. मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर हैं, जिसको विंडोज़ मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, उन्होंने एडवांस डिवाइसेस को बहुत ही पावरफुल बना दिया है. कैसे? दैट अलाउज द यूज़र
to dash and dash email and browse the internet, right? मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो विंडोज़ के मोबाइल सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी हेल्प से एडवांस डिवाइसेस बहुत ही पावरफुल बन गए हैं, जिनकी वजह से यूज़र दो काम कर सकता है। ओके, वो कौन कौन से काम है वो आपको बताना है, ठीक है? पहला काम सेंड, यानी कि ईमेल को सेंड कर सकता है, और दूसरा रिसीव। ओके, so students, this is the fill in the blanks, and just try to do these questions in your book by using your pencil. Okay, now let's move to the next slide. Your next question is, in dash folder you can store digital photos, images and graphic file. ओके, आपको बताना है वो कौन सा फोल्डर है जिसमें कि डिजिटल फोटोज या इमेजेस या ग्राफिक्स फाइल स्टोर हो जाती हैं। ओके, चलिए ये रहा आंसर। आंसर है आपका पिक्चर फोल्डर। पिक्चर फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है जहां पर आप डिजिटल फोटोज वगैरह स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। ओके, एंड मेनी स्टूडेंट्स आर आल्सो ट्राइंग टू गिव द करेक्ट आंसर। Okay, so there is that students are already giving the likes from my side. Okay, now it's time to move to the next question. Your next question is true or false, right? I will just read out the sentence, and if the sentence is wrong you have to tell false. If the sentence is correct you have to tell true, right? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज विंडोज 7 इज नॉट कंपैटिबल विथ टच सेंसिटिव स्क्रीन। मतलब क्या हुआ कि जो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टच सेंसिटिव स्क्रीन के लिए कंपैटिबल नहीं है। कंपैटिबल मतलब सुरक्षित नहीं है, इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है विंडोज। क्या ऐसा है? इसी को हमें चेक करना है। आंसर होगा फॉल्स। आंसर होगा फॉल्स, ठीक है? कारण ये है विंडोज़ की जो विंडोज 7 जो है वो बनाया गया है कंप्यूटर के लिए, मोबाइल के लिए बनाया गया है। मोबाइल के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है? टच सेंसिटिव स्क्रीन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है वो दूसरा होता है, ठीक है? विंडोज 7 नहीं होता है। ओके, चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यू कैन ओपन अ जंप लिस्ट बाय राइट क्लिक ऑन अ प्रोग्राम आइकन ऑन द विंडोज 7 टास्क बार। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या आप जंप लिस्ट को राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं? कहां पर राइट क्लिक करना है? टास्क बार में। ओके, जब आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा बॉटम में आपको टास्क बार दिखाई देगा, तो उस टास्क बार में राइट क्लिक करने पर, किसी भी प्रोग्राम पर राइट क्लिक करने पर क्या जंप लिस्ट आपको दिखाई देगा? मैंने आपको बता रखा है जंप लिस्ट क्या होता है। जंप लिस्ट का मतलब ये हुआ कि जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड साइट्स हैं या चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको पहले से ही प्रीव्यू होकर दिख जाती हैं, थंबनेल में दिख जाती हैं, उसे ही कहते हैं जंप लिस्ट। ओके, सो आपका आंसर क्या होगा? ट्रू, बिल्कुल सही आंसर है ये। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। एरो फ्लिप 3D फीचर, यानी जो एरो फ्लिप फीचर है, इनेबल यू टू प्रीव्यू ऑल ओपन विंडोज एट अ स्टैक। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक हो जाना, यानी कि पहली विंडो खुली, फिर दूसरी विंडोज के ऊपर, फिर तीसरी, फिर चौथी। ओके, सो आपको करना ये बताना है कि क्या जितनी भी विंडो स्टैक की फॉर्म में ओपन है उसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं? कि एरो फ्लिप ये काम करता है? आपको बताना है यस या नो। आंसर होगा ट्रू, यस। एरो फ्लिप यही काम करता है। विंडोज प्लस टैब की को आप प्रेस करिए, जितनी भी ओपन विंडोज हैं वो आपका स्टैक की फॉर्म में आ जाएंगी। ओके, और जो सामने जो आपका व्यू होगा वो आपका फ्रंट स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, now come to the question number 4. Question 4 says that Windows 7 allows the user to display windows side by side. क्या ऐसा हो सकता है Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में एक साथ दो विंडो को बिल्कुल एक ही स्क्रीन पे देखा जा सकता है? अगर ये सही है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल देखा जा सकता है ये। स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी गुड, यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। बर्निंग अ सीडी और रिपिंग अ सीडी आर टू कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेशन। क्या बर्निंग और रिपिंग एक जैसा है या अलग अलग है? बताइए। चलिए आंसर देखते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है ये, दोनों अलग अलग होता है ये।
ठीक है, क्योंकि बर्निंग में क्या होता है, आप कंप्यूटर की जो सॉन्ग्स हैं, जो मूवीज़ हैं, उसको आप सीडी के अंदर करते हैं, आप राइट कर लेते हैं आप। और रिपिंग में क्या करते हैं, इसी का उल्टा करते हैं आप। रिपिंग में क्या होगा, कंप्यूटर में जो कंटेंट्स हैं, जो फाइल्स हैं, जो आप कॉपी करना चाहते हैं आप उसको, ठीक है, तो क्या करेंगे आप, सीडी के कंटेंट्स को आप कॉपी कर लेंगे कंप्यूटर में आप, ठीक है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं ये। ओके, नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट is multiple choice question. That's your favorite question here. Okay, now question number 1. The dash feature allows you to turn the open windows transparent and make the desktop screen visible. आपको बताना है ऐसा कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से ओपन विंडोज ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और डेस्कटॉप की स्क्रीन आपको दिख जाती है। ओके, 3 ऑप्शंस हैं, एरोपिक, जंप लिस्ट, विंडोज मीडिया सेंटर। Okay, so the answer is Aeropic. Okay, the correct answer is Aeropic. Now come to the question number 2. Question 2 says that dash is a new feature in Windows 7 which takes you to write to the document, picture or website that you use frequently. मतलब क्या हुआ कि टास्क बार में आपने राइट क्लिक किया किसी भी एप्लीकेशन पर, राइट क्लिक करने के बाद जो फ्रिक्वेंटली यूज पिक्चर्स होती हैं, जो वेबसाइट्स होती हैं, वो आपको दिख जाती हैं। ये फीचर कौन ये करता है, ये विच फीचर? ओके, लेट्स हैव द आंसर। आंसर इज जंप लिस्ट। जंप लिस्ट वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जो ये काम करता है ये। ओके, नाउ इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यू कैन यूज डैश ऑप्शन टू रन पिक्चर्स ऑन ऑटोमेटेड मोड। वो कौन सा ऑप्शन, इस पर क्लिक करने पर पिक्चर्स ऑटोमेटेड मोड ऑटोमेटिकली चलते हैं, आपको मूव होने लगते हैं आपका, ठीक है। एक पिक्चर दिखाई दिया, अपने आप दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऑटोमेटिकली आपका पिक्चर चेंज होती रहेगी आपकी। नंबर 1 प्ले स्लाइड शो, नंबर 2 स्लाइड शो, नंबर 3 रन स्लाइड शो। ओके, इन तीनों में से एक सही है। लेट्स हैव द आंसर। Answer is play slide show. Okay students, now it's time to move to the 4th option. By using dash feature, every open window except the one you are working in will disappear. मतलब क्या हुआ, वह कौन सा फीचर है जिसमें कि जो जितने भी ओपन विंडोज हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका डिसअपियर हो जाएगा आपका, ठीक है, जब आप उसको शेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर होगा शेक। मतलब क्या हुआ कि जो करंट विंडो है वो माउस के क्लिक, केवल आपका क्लिक करने से अलावा केवल आप शेक करने से भी उसको आप बंद कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको बोलते हैं एरो शेक। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, ये रहे आपके MCQ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, इसको आपको अच्छे से समझना है और उसको अच्छे से समझने के बाद फिर आपको उसके आंसर्स देने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सरिता वांट्स टू रिकॉर्ड हर वॉइस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की हेल्प से वो रिकॉर्ड करना चाहती है। विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट टू हर टू यूज? कौन सा ऑप्शन आप सजेस्ट करेंगे आप, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये है इसका आंसर। आपके कंप्यूटर में जिसमें विंडोज 7 इंस्टॉल है वहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है साउंड रिकॉर्डर। इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, फिर इसके बाद एसेसरीज पे जाएंगे और उसके बाद साउंड रिकॉर्डर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसको ऑन करिए, जो आप बोलेंगे वो आपका रिकॉर्ड होकर के फाइल में सेव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम यहाँ सरिता को साउंड रिकॉर्डर ऑप्शन को यूज़ करने की सलाह देंगे हम। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या पूछा गया है, कृतिका हैज मेड हर प्रोजेक्ट एंड सेव्ड इट ऑन अ कंप्यूटर, ठीक है। कोई प्रोजेक्ट बनाया और उसको कंप्यूटर में सेव कर दिया। अब बट लेकिन क्या हुआ, शी फॉरगॉट द लोकेशन वेयर शी हैड सेव्ड इट। अब गलती से क्या हुआ कि वो भूल गई कि उसने फाइल कहाँ सेव की है। सजेस्ट हर टू बेस्ट वे टू सर्च हर प्रोजेक्ट।
अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसकी हेल्प से वो अपने प्रोजेक्ट को सर्च कर सकती है। ठीक है, वो देखना है कौन सा तरीका है ये। सो आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सर्च बॉक्स। ठीक है, जब आप कोई विंडो ओपन करते हैं तो राइट साइड टॉप में छोटा सा बॉक्स होता है, इसको हम सर्च बॉक्स कहते हैं। किसी भी फाइल को आप वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। केवल आप शुरू के 2-3 लेटर लिखेंगे, अब आपको उससे रिलेटेड, उससे मैच करता हुआ जितनी भी फाइल है वो सारा आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर तब भी नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसी सर्च बॉक्स के ओपन विंडो में वो आपका होगा सी मोर रिजल्ट। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग आप वहाँ पे कंडीशंस की हेल्प से फाइल्स को सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में सर्च बॉक्स होता है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो विंडो आपने विंडो एक्सप्लोरर वगैरह ओपन किया है, जो विंडो एक्सप्लोरर ओपन करेंगे आप, ठीक है, स्टार्ट पे क्लिक करके वहाँ पर राइट साइड टॉप में आपको वहाँ पे भी सर्च बॉक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर देखते हैं, एक बार आंसर आपके लिए पढ़ देता हूँ मैं, समझा देता हूँ मैं। इट इज सजेस्टेड टू यूज सर्च बॉक्स विच इज अवेलेबल एट स्टार्ट मेन्यू एंड आफ्टर दैट क्लिक ऑन सी मोर रिजल्ट्स ऑप्शन यू हैव सर्च बॉक्स। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पर वे जिसकी वजह से आप अपने फाइल्स को, प्रोजेक्ट को, एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now the question number E के लिए answer the following question. Okay, so in this what you need to do, some questions are there, you have to understand it and after understanding you have to give the answer, right? So first question is what do you understand by Windows Media Player? Windows Media Player की है आपसे क्या समझते हैं आप? Okay, let's have the answer. It is an application software. Windows Media Player क्या है? एक application software है that runs and organizes the digital media. डिजिटल मीडिया का मतलब क्या होता है? ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल दोनों। डिजिटल मीडिया का मतलब क्या होता है? ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल दोनों। ठीक है, अवेलेबल इन कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, सो ये रहा डेफिनेशन और यहाँ पर इसकी हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि विंडो मीडिया प्लेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम डिजिटल मीडिया को बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, रन कर सकते हैं। अगर आपके पास उसमें इंटरनेट कनेक्शन है आपके लैपटॉप में तो इंटरनेट रेडियो भी सुन सकते हैं विंडो मीडिया प्लेयर की हेल्प से, इंटरनेट रेडियो, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन रिपिंग एंड बर्निंग अ सीडी। रिपिंग और बर्निंग दोनों ही डिफरेंट ऑपरेशन है, ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। अब आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। रिपिंग में देखते हैं कॉपिंग सॉन्ग फ्रॉम आवर फेवरेट सीडी और डीवीडी ऑन टू आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड रिपिंग। मतलब क्या हुआ, आपके सीडी या डीवीडी में जो भी कंटेंट्स हैं वो आप कंप्यूटर में कॉपी कर देते हैं, उसे बोलते हैं रिपिंग। बर्निंग क्या होता है, कॉपिंग सॉन्ग फ्रॉम कंप्यूटर टू सीडी। मतलब सीडी में जो सॉन्ग्स व मूवीज हैं उसको आप सीडी या डीवीडी में राइट कर रहे हैं आप। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम बर्निंग। ठीक है, अब रिपिंग करने के लिए आपको यहाँ पे चाहिए विंडोज मीडिया प्लेयर की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और अगर आप बर्निंग करना चाहते हैं तो बर्निंग करने के लिए आपको तीन तरीके हैं। नंबर 1 न्यूरो, नंबर 2 एक्सप्रेस बर्न और एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देता हूँ आपको विंडोज एक्सप्लोरर। इन 3 की मदद से आप बर्निंग कर सकते हैं आप। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें आप। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। स्टूडेंट्स, your one comment, one like gives us a lots of motivation to me, and in the upcoming videos whatever the errors are there, whatever the mistakes are there, each and everything will be removed. So your motivation is very much necessary for us. Okay, so trying to give your comments, trying to give your feedback, right, your suggestions. Okay, now it's time to move to the question number 3. Question 3 says that what is the use of Window Media Center? What is the use of Window Media Center? Okay, so Window Media Center का क्या यूज़ है? देखिए,
You can watch TV, movie and another video on the personal computer easily. मतलब क्या हुआ कि आप अपने ही कंप्यूटर पर टीवी देख सकते हैं आप, ठीक है, इंटरनेट टीवी देख सकते हैं आप, अदर वीडियोस को देख सकते हैं, मूवीज़ को देख सकते हैं आप, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्या है, यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द टीवी शोज इफ़ यू आर हैविंग अ केबल कनेक्शन। अगर आपने अपने कंप्यूटर में केबल कनेक्शन लगा रखा है तो आप उसको जो टीवी शोज आ रहे हैं उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं आप। तो ये सारा काम जो हो सकता है केवल और केवल आपका हो सकता है ये विंडोज मीडिया सेंटर की हेल्प से हो सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू गिव यू। आप केवल इस वीडियो को देख करके कॉपी में लिख मत लीजिए, इसको समझिए अच्छे से, नॉलेज गेन करिए। जितना नॉलेज गेन करेंगे वही आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ विल यू डिस्प्ले टू एप्लीकेशंस विंडोज साइड बाय साइड। मतलब क्या हुआ कि 2-3 विंडोज़ हैं और 2-3 विंडोज़ को आपको ओपन करना है, लेकिन साइड बाई एक ही स्क्रीन पे 2-3 विंडोज़ आपको देखनी है। कैसे करेंगे आप, ठीक है, इसके स्टेप्स को देखते हैं। ओपन एनी 2 or 3 applications according to your wish. Okay, this is a step number 1. Step number 2, right click on the taskbar, and once you have done the right click you will get the option show windows side by side. Click one time, immediately all the open windows will be comes in a cascade form and all the screen will come on the single screen. All the windows come in a single screen, right? और सिंगल स्क्रीन आने के बाद आप एक ही स्क्रीन पे एक ही स्क्रीन पे सारे विंडोज, सारे एप्लीकेशन की विंडोज को देख सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स राइट नाउ दिस इज द एक्सरसाइज पार्ट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। So students, right now it's time to finish off this video, and I hope you will definitely press the bell icon so that you can get the notification for that. Okay, and please share, like and subscribe my YouTube channel. Okay, so students, I hope you have each and everything is very much clear to you, and what content is delivered in this video I will try to write in your fair copy, and just show me on my WhatsApp number. Okay, and if you have any kind of query related to this video you can just give me a comment or give me a message on WhatsApp. Okay, so once again thank you so much for watching this video. Keep watching the other videos also, and just subscribe my channel. Okay, and like and share this, right? So once again thank you so much.